کہانی کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹم نامی ایک سادہ سا لڑکا اپنے خاندان کے ساتھ سمندر کے قریب ایک خوبصورت گھر میں رہتا ہے۔ اس کا خاندان بھی ان جیسا ہی پیارا تھا۔ ان کے والد انتہائی ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے۔ اس کی ماں بھی اس سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کی چھوٹی بہن کٹ کٹ پورے گھر کی جان تھی۔ اس کے چچا کافی عجیب تھے۔ وہ تھوڑا سا کھویا ہوا روح تھا لیکن دل کا اچھا تھا۔ ہر سال نئے سال پر ان کے گھر پر پارٹی ہوتی تھی۔ سب خوشیاں مناتے تھے۔ اس سال بھی ایسا ہی تھا۔ پارٹی کے اگلے دن ٹم کے والد نے اسے فون کیا اور کہا کہ آج تم 21 سال کے ہو گئے ہو۔ تمہارے دادا نے مجھے اس طرح بلایا تھا جیسے آج میں نے تمہیں بلایا ہے۔ ٹم نے براہ راست پوچھا کہ کیا کوئی خاص وجہ ہے۔ اس کے والد نے ہمیشہ کی طرح ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ اسے بتایا، ہمارے خاندان کے مردوں کے پاس ایک راز ہے۔ ہم وقت کا سفر کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف وقت میں پیچھے جا سکتے ہیں، آگے نہیں۔ ٹم نے پہلے سوچا کہ اس کا باپ مذاق کر رہا ہے، لیکن اس کے والد نے کہا کہ میں بھی پہلے یہی سوچتا تھا، بس کسی تاریک جگہ پر جائیں اپنی۔ اب کچھ نہیں، مٹھی بند کریں اور اس وقت کے بارے میں سوچیں جس وقت آپ واپس جانا چاہتے ہیں۔ ٹم نے سوچا کہ اگر یہ مذاق ثابت ہوا تو پاپا میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، لیکن اب اس کی دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ وہ کمرے کے اندر گیا، مٹھی بھیجی اور کل رات نیو ایئر پارٹی کے بارے میں سوچنے لگا۔ جب وہ بیدار ہوا تو دیکھا کہ اس نے وہی لباس پہن رکھا ہے جو اس نے پارٹی میں پہنا تھا۔ باہر سے وہی موسیقی آ رہی تھی۔ اس نے نیچے جا کر وہ سب کچھ دیکھا جو کل پارٹی میں ہوا تھا۔ اس بار انہوں نے گزشتہ روز کی غلطیاں نہیں دہرائی۔ پھر وہ اپنے موجودہ وقت میں واپس آیا اور پاپا سے ملا اور کہا کہ یہ واقعی کام کرتا ہے۔ اس کے باپ نے مسکرا کر اس سے پوچھا کہ وہ اس طاقت کا کیا کرے گا۔ ٹم نے کہا کہ سب سے پہلے وہ پیسہ اور شہرت چاہتا تھا۔ یہ سن کر اس کے والد نے فوراً اسے روک دیا، ایسا کبھی نہ کرے، تمہارے دادا بھی یہی سوچتے تھے۔ آخر کار اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ میں نے کبھی کسی بہت امیر آدمی کو خوش نہیں دیکھا۔ لیکن ٹم نے کہا کہ اگر اسے پیسے مل گئے تو اسے ساری زندگی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے والد نے بہت سادگی سے جواب دیا کہ کام سے کبھی بھاگنا نہیں۔ اپنے چچا کو دیکھو، اس نے یہ بھی سوچا کہ ٹائم ٹریول سب کچھ حل کر دے گا، اور کیا وہ ایسا کر سکتا تھا؟ سب جانتے ہیں کہ آج ان کی حالت کتنی خراب ہے۔ ٹم اسے غور سے سن رہا تھا۔ پھر اس کے والد نے اسے آخری بار کہا کہ اس طاقت کو کسی خاص کام کے لیے استعمال کرو، کسی ایسی چیز کے لیے جو واقعی اہم ہے۔ اب ٹم نے سوچا کہ وہ سب سے پہلے اس طاقت کو محبت تلاش کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ کچھ عرصے بعد ٹم کی چھوٹی بہن کٹ کیٹ کا بوائے فرینڈ جمی ایک لڑکی کو گھر لے آیا۔ اس کا نام شارلٹ تھا۔ وہ ان کے پاس 2 ماہ رہنے آئی تھی۔ شارلٹ بہت خوبصورت تھی۔ ٹم کو فوراً ہی اس سے پیار ہو گیا۔ اس نے ہر طرح سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے ساتھ ٹینس کھیلتا تھا، سیر کے لیے جاتا تھا، اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ اب جب شارلٹ کے واپس جانے کا وقت آیا تو ٹم اس کے کمرے میں گیا اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ لیکن شارلٹ نے کہا کہ اگر آپ یہ بات 1 ماہ پہلے کہہ دیتے تو شاید کچھ ہو سکتا تھا۔ لیکن ٹم کے سامنے یہ بہانہ کام نہیں کر رہا تھا۔ ٹم فوراً اپنی الماری میں گیا اور 1 ماہ پیچھے چلا گیا اور پھر شارلٹ سے اسی طرح اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس بار شارلٹ نے مسکرا کر کہا، کاش تم نے یہ بات 1 دن پہلے پوچھنی ہوتی۔ یہ عذر سن کر ٹم سمجھ گیا کہ چاہے وہ ماضی میں کتنی ہی بار چلا جائے، شارلٹ اس سے پیار نہیں کرتی۔ اس نے اپنا دل سخت کیا اور مان لیا کہ وقت کے سفر سے بھی وہ کسی کا دل نہیں بدل سکتا۔ اگلے دن شارلٹ چلی گئی اور کچھ دنوں کے بعد ٹم بھی لندن چلا گیا۔ لو کی پریکٹس شروع کریں اور پیار تلاش کریں۔ وہاں وہ اپنے والد کے ایک دوست کے ساتھ رہنے لگا، ہیری، جو تھیٹر آرٹسٹ تھا۔ 6 مہینے گزر گئے لیکن ٹم کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئی۔ ایک دن وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ ریسٹورنٹ گیا۔ وہاں اس کی ملاقات مریم سے ہوئی،
दोनों कुछ देर बातें करते रहे। गुफ्तगू गहरी होती गई और टम ने उसका नंबर ले लिया। नंबर देते हुए मरियम ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा मिलेंगे। इस रात टम बहुत खुश था। जब वो घर गया तो देखा कि हैरी का मूड बहुत खराब था। उन्होंने बताया कि आज मेरा ड्रामा था, लेकिन एक अदाकार अपना डायलॉग भूल गया, जिसके बाद ड्रामा बिगड़ गया। सारे नाजरीन उठकर चले गए। अब ड्रामे के बहुत बुरे रिव्यूज आएंगे और मेरा काम बर्बाद हो जाएगा। पे जाने की हालत देखकर टिम ने फैसला किया कि वो उसकी मदद करेगा। अब वो चंद घंटे पहले पहुंच गए और अदाकार को वक्त पर मकालमा हफ्ज करवा दिया। इस बार ड्रामा बहुत आसानी से चला, जिससे हैरी बहुत खुश हुआ। दूसरी जानिब टिम भी मरियम की अपनी जिंदगी में आमद पर बहुत खुश था। लेकिन जब उसने ड्रामे की रात के बाद अपने फोन पर मरियम का नंबर चेक किया तो उसका दिल टूट गया। उसके फोन में नंबर नहीं था। उसकी वजह यह है कि इस बार ने वो लम्हा मरियम के साथ नहीं गुजारा। जब उसे मरियम से मिलना था तो वो अदाकार को सत्रें याद करवा रहे थे। अब टिम ने सोचना शुरू कर दिया कि वक्त पर कैसे वापस जाए। मैं वापस चला गया तो अंकल का ड्रामा फ्लॉप हो जाएगा। वो बेबस था क्योंकि दोनों चीजें एक ही वक्त में हो रही थी। अब उसका मरियम से कोई राब्ता नहीं था। एक दिन अखबार पढ़ते हुए उसे याद आया कि मरियम को कैट मास बहुत पसंद है और वो एक आर्ट गैलरी में काम करती थी। टिम फौरन उसी गैलरी में गया और एक हफ्ते तक हर रोज वहां उसका इंतजार करता रहा। मरियम एक हफ्ते के बाद वहां आई, लेकिन जब टिम ने उससे बात करने की कोशिश की तो वो उसे पहचान नहीं पाई। मरियम के लिए ये उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन टिम के लिए ये उनका दूसरा था। टिम ने इत्तेफाक से उसे और उसके दोस्त को कॉफी के लिए मदऊ किया और वो दोनों इस वक्त राजी हो गए। काफी टेबल पर बात करते हुए टिम ने मरियम से पूछा कि क्या उसका बॉयफ्रेंड है। मरियम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इसके पास एक हफ्ता पहले था। टिम ये सुनकर हैरान रह गया और कहा कि ये मुमकिन नहीं है। मरियम को ये सवाल बहुत अजीब लगा। इससे पहले कि उनकी बातचीत मजीद आगे बढ़े, मरियम का बॉयफ्रेंड वहां पहुंच गया। इसका नाम रूपर्ट था। टिम ये देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने मामूल से काम लेने की कोशिश की और पूछा, तुम दोनों कहाँ मिले थे? मरियम ने जवाब दिया कि ये बोरिंग पार्टी में थी। और वो पार्टी कहाँ थी? मरियम के दोस्त ने बताया कि पार्टी उनके घर पर थी। टिम ने कुछ बेसब्री दिखाई और मरियम के दोस्त का पता पूछा। ये सुनकर मरियम और उसकी सहेली को थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन टिम ने ये कहकर सूरत-ए-हाल को संभाला कि वो चीजों को तफसील से जानना पसंद करता है। ये सुनकर उसकी सहेली ने एड्रेस दिया। टिम फौरन वक्त पर वापस चला गया और उस पार्टी के वक्त पर पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तो पार्टी चल रही थी, लेकिन रूपर्ट अभी तक नहीं पहुंचा था। मरियम एक कोने में अकेली खड़ी थी। वो थोड़ा उदास लग रहा था। टिम उसके पास गया और उससे अपनी पसंद की चीजों के बारे में बात करने लगा। वो मरियम से पहली बार मिल रहा था, लेकिन उससे पहले वो 2 बार मरियम से मिला था। उन्होंने कहा कि मुझे केट मॉस भी बहुत पसंद है और मैं जानता हूं कि आप इस पार्टी में बोर हो रहे हैं। मरियम थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसकी बातों से मुतासिर भी हुई। उसने ये भी कहा कि हाँ, ये पार्टी बहुत बोरिंग है, क्या हमें बार में जाना चाहिए? दोनों पार्टी से बाहर चले गए। दूसरी तरफ गरीब रूपर्ट अभी पार्टी में दाखिल हो रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि जो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बनने वाली थी उसे कोई और ले गया है। लेकिन इस बार टिम ने सब कुछ बदल दिया था। रात के खाने के बाद टिम ने मरियम को घर छोड़ दिया। दोनों के दरमियान कुर्बत बढ़ती गई। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, लेकिन चीजें नहीं हुई जैसा कि टिम ने सोचा था। तो टिम ने उसे एक बार और आजमाने का सोचा। वो वक्त पर वापस चला गया और उस रात को बार बार जिंदा करने लगा, यहाँ तक कि ये बिल्कुल कामिल हो गया। अब वो मरियम को पूरी तरह मुतासिर कर चुका था। वो दोनों रोज एक दूसरे को फोन करने लगे। उनकी मोहब्बत वक्त के साथ साथ गहरी होती गई।
टिम को लगने लगा कि मरियम वो लड़की है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी गुजार सकता है। कुछ अरसे बाद टिम ने मरियम को शादी की पेशकश की। मरियम ने बगैर किसी झिझक के हाँ कहा। टिम मरियम को अपने घर ले गया और उसे अपने खानदान से मिलवाया। सब मरियम को बहुत पसंद करते थे। जब सब लोग खाने की मेज पर बैठे थे तो टिम ने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम शादी करेंगे। ये सुनकर सब में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके साथ टिम ने ये भी बताया कि वो बाप बनने जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो शादी से पहले ही बाप बन जाते हैं। शादी का दिन आया और बहुत सी चीजें भीग गई। कभी बारिश होने लगी, कभी कुछ लोगों की तकरीरें गड़बड़ हो गई। टिम को ज़ाती तौर पर इन चीज़ों की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन वो चाहता था कि मरियम उसके ख्वाबों की शादी करे, और इस तरह वो हर चीज़ को बेहतरीन बनाने के लिए बार बार वक्त का सफ़र करता रहा और आखिरकार शादी मुकम्मल हुई। शादी के बाद टिम और मरियम की एक बेटी थी। वो दोनों इससे बहुत प्यार करते थे। टिम की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। इसने वक्त पर वापस जाना बहुत कम कर दिया था, क्योंकि अब उसे चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसके मुताबिक इसकी जिंदगी में सब कुछ कामिल था। एक दिन टिम की बेटी की सालगिरह थी। पूरा खानदान अपने नए घर में जमा हो गया, लेकिन कट कैट, टिम की छोटी बहन, अभी तक नहीं आई थी। जब टिम ने कट कैट के बजाय अपने बॉयफ्रेंड जिमी को देखा तो वो चौंक गया। टिम ने इससे पूछा कि कट कैट कहाँ है। जिमी ने अफसोस से बताया कि वो नशे में है। हम दोनों में लड़ाई हुई और फिर वो गाड़ी लेकर चली गई। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ चली गई है। टिम परेशान हो गया और कुछ देर बाद उसे मालूम हुआ कि कट कैट का हादसा हो गया है। उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी। कट कैट कदरे कंफ्यूज हुई। चेहरे पर बेचैनी थी, लेकिन उसने तम का हाथ नहीं छोड़ा। वो दोनों उस पार्टी के दरवाजे पर खड़े थे। मौसीकी जोर जोर से बज रही थी, लोग नाच रहे थे। थोड़ी देर बाद जमी अपने दिल फरीब इशारों से ऐसे आया जैसे उसे दुनिया की परवाह ही ना हो। उसने देखा कि जमी किसी और लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। पहले तो कट कैट कंफ्यूज हुई, लेकिन फिर उसके चेहरे पर गुस्सा नमूदार होने लगा। वो आगे बढ़कर जमी के पास गई और बगैर कुछ सोचे उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। जमी चौंक गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे थप्पड़ क्यों मारा गया। कट कैट कुछ देर उसे देखता रहा, लेकिन कुछ ना बोला। उसके चेहरे से जाहिर हो रहा था कि अब उसके जहन में चीजें वाज़ेह हो रही थी। उसने इस थप्पड़ से अपने तमाम पुराने जज्बात खत्म कर दिए। दूसरी तरफ टम ने महसूस किया कि कट कैट अब उस रिश्ते से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब जबकि वो जमी को छोड़ चुकी थी, उसका मुस्तकबिल भी बदल चुका था। थोड़ी देर बाद वो वापस मौजूदा वक्त में आ गए। टम ने देखा कि कट कैट बहुत पुरसुकून नजर आ रहा है। उसकी आंखों में सुकून था। अब कट कैट अपने एक करीबी दोस्त जे के साथ थी। जे बहुत अच्छा लड़का था। टिम ने देखा कि अब उसकी बहन वाकई खुश थी। टिम ये सोचकर बहुत खुश था कि आखिरकार उसने अपनी बहन की जिंदगी ठीक कर दी है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। जब टिम अपनी बेटी पॉसी के पास गया तो उसने देखा कि पॉसी वहां नहीं है। उसकी जगह एक लड़का था जो उसका बेटा था। ये देखकर टिम का दिल डूब गया। वो समझ गया कि पॉसी के पैदा होने से पहले वो कट कैट की जिंदगी बदलने गया था। तो अब उसकी जिंदगी इतनी बदल चुकी थी कि उसकी बेटी पैदा ही नहीं हुई। इसके बजाय एक लड़का पैदा हुआ जिसे वो जानता तक नहीं था, क्योंकि उसने एक लम्हा भी उसके साथ नहीं गुजारा। उसके चेहरे पर घबराहट थी। वो फौरन मरियम के पास गया और पूछा, पॉसी कहाँ है? मरियम ये नाम सुनकर गहरी सोच में पड़ गई, क्योंकि उसकी पॉसी नाम की कोई बेटी नहीं थी। ये सब देखकर टिम का दिल टूट गया। उसने सोचा कि मैं इसे कैसे वापस लाऊं। वो फौरन अपने वालिद से मशवरा लेने के लिए गया। उसके वालिद ने उसे समझाया, बेटा, मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था।
अगर तुम अपने बच्चे की पैदाइश से पहले के वक्त में वापस जाओ और कुछ भी बदलो तो तुम्हारा बच्चा भी बदल जाएगा, उसका डीएनए, उसकी शनाख्त, सब कुछ। ये वक्त के सफर का सबसे बड़ा खतरा है। ये बात टिम के दिल पर पत्थर की तरह गिर गई। पॉजी उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा था। उसके वजूद में टिम की खुशी थी। इसलिए टिम ने फैसला किया कि उसे कट कैट की जिंदगी बदलने के लिए कोई और रास्ता तलाश करना पड़ेगा, और उसने टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल नहीं किया। जो कुछ हो रहा था होने दो। अब कट कैट का एक बार फिर कार हादसा हुआ। टिम और मरियम अस्पताल में उससे मिलने गए, लेकिन इस बार टिम पुरसुकून था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बहन की जिंदगी नॉर्मल हो गई है। वो जानता था कि कट कैट जे की मोहब्बत में बढ़ रही है, सच्ची मोहब्बत। कुछ अरसे बाद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इससे कट कैट को वो जज्बाती सहारा मिला जिसकी उसे जरूरत था। टिम का ख्याल था कि कुछ रिश्ते बदलने के लिए उन्हें वक्त देना होगा। शॉर्टकट सिर्फ मंजिल बदल सकते हैं, लेकिन सफर मुकम्मल होना है। कुछ और वक्त गुजर गया और अब टिम और मरी एक और बच्चा था, एक बेटा। अब उनके दो प्यारे बच्चे थे, पॉजी और उसका छोटा भाई। टिम का खानदान अब मुकम्मल हो चुका था। चारों तरफ खुशी का समा था, लेकिन जिंदगी कभी कामिल नहीं होती। एक दिन टिम को मालूम हुआ कि उसके वालिद को कैंसर है। उसके पास सिर्फ चंद हफ्ते बाकी थे। टिम ये सुनकर चौंक गया। वो उसके पास गया और पूछा कि क्या कुछ बदला जा सकता है। उसके वालिद ने मुस्कुराते हुए कहा कि दोस्त, मैं सिगरेट नोशी नहीं छोड़ सकता। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये आपकी और आपकी बहन के पैदा होने की वजह है। तुम्हारी माँ को मेरे अंदाज में सिगरेट पीना पसंद था, इस तरह मैंने उसे मनाया। अगर वो उसे बदल दे तो सब कुछ बदल जाएगा। टिम समझ गया कि बाज औकात कुछ आदतें, कुछ गलतियां, कुछ मसाइल भी अच्छी कहानी की वजह बन जाते हैं। उसके वालिद ने उसे एक और राज बताया कि मैं हर रोज 2 बार रहता हूँ। पहली बार एक आम इंसान की तरह तनाव पर रूटीन में, दूसरी बार मुकम्मल अमन और मोहब्बत के साथ वक्त पर वापस जाकर। आप भी आजमा लें। आप इसके मुताबिक सोचेंगे, मेरी उम्र कम अज कम 200 साल है। ठीक है, टिम ने वो ही करना शुरू कर दिया। उसने हर दिन 2 बार जीना शुरू किया। पहली बार एक आम आदमी की तरह, दूसरी बार मुकम्मल खुशी के साथ। इस तरह हर लम्हा उसके लिए ख्वाब जैसा बन गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसे टिम दोबारा जीना नहीं चाहता था। उसके वालिद की वफात का दिन। वो दिन बहुत बुरा था। मरियम ने उसे तसल्ली दी, उसके कंधे पर हाथ रखा। वो जानता था कि वो वापस जाकर अपने बाप से एक बार मिल सकता है, और उसने ऐसा भी किया। वो जब भी गमगीन होता, वक्त पर वापस चला जाता, समंदर के किनारे चहलकदमी करता और अपने वालिद से बात करता। वो उससे बात करता, वो उन लम्हात को अपने साथ गुजारेगा। फिर एक दिन मरियम ने अचानक कहा कि टिम, मुझे एक और बच्चा चाहिए। ये सुनकर टिम खामोश हो गया। फौरन उसके जहन में एक ख्याल आया, अगर दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो वो अपने बाप से दोबारा कभी नहीं मिल सकेगा। उसने अपने जज्बात छुपाते हुए कहा, ठीक है। मरियम हामिला हो गई और टिम ने फैसला किया कि वो अपने वालिद से आखिरी बार मिलेगा। वो वक्त पर वापस चला गया और अपने वालिद से कहा कि अब वो वापस नहीं आ सकेगा। ये आखिरी बार है। उसके बाप ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मेरे साथ चलो। आइए एक बार आपके बचपन के दिनों में वापस चलें। अगर हमने कुछ नहीं बदला तो कुछ भी गलत नहीं होगा। वो दोनों समंदर के किनारे गए, जहां टिम एक छोटा बच्चा था। रेत का किला बनाया। वो लहरों से खेलते रहे। इस लम्हे में सिर्फ मोहब्बत थी, बहुत सी मोहब्बत। ये लम्हा वक्त से बाहर था। इसके बाद टिम हाल में वापस आया, और इस दिन के बाद उसने वक्त का सफर करना छोड़ दिया। वो हर रोज तोहफे की तरह जीने लगा। वो हर लम्हा खुशी तलाश करने लगा। चाय का एक घूंट, एक पुरानी धुन, पुसी की ड्राइंग, मरियम की आंखों की रोशनी। इसे हर चीज अनमोल लग रही थी। और यहीं से टिम की कहानी खत्म हुई। एक आदमी जो वक्त पर काबू रखता था,
لیکن آخر میں اسے وقت کو قبول کر کے ہی خوشی ملی۔